Okay. Thank you so much for joining today. Today's session is what is youth enlightenment? Actually, we are a platform for spiritual wellness. First of all, आप सभी को Independence Day की बहुत बहुत मुबारकें. Like our country today, we all should be independent from and free from our inner thoughts and sins and problems that we think of. So that is the reason we have initiated this youth enlightenment. Um, Today is our 7th session. It's from the blessings of Guru Ma. She has started this internally for few young minds, and now she has reached out to a lot of people. The idea is, the vision is that we don't want anyone to feel alone, or we don't want people to be suffering in this tough times, because mental awareness is very important, and mental health is equally important as well. um, हम हर हफ्ते कुछ नए एक्साइटिंग टॉपिक से, नई चीज़ों से आप लोगों को नई इंफॉर्मेशन देते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ अवेयर करते हैं कि हाउ कैन यू यूज इट in your day-to-day lives. We are not trying to take you away from your modern culture and move you to an era that is far behind from us, but we show you how you can use that in today's world and live happily, because that's the end goal of everyone. So so for today, for today we have a topic which is very dear because of the Sawan Mahina that's going on. I hope you all know about it. We want to do a topic on Lord Shiva and what all can we learn from him. How can we learn from him in having a stress-free life? So that's how we're going to be discussing today. I would like, so before we start, let me share a video with all of you guys that we have collected about attributes of Lord Shiva that can teach us things, teach us about inner self, about spirituality, about our own day-to-day lives. So before further ado, let me share my screen. Okay. Okay. I feel like it's the wrong one. Sorry, guys. 1 second. Okay. Perfect. I hope you all can see my screen. Let me start.
so much for watching this insightful video. I hope आप लोगों ने कुछ इससे perceive किया होगा. So before we start our session with Gurma, this is the topic today that I shared with you about Lord Shiva. Madhuji will be coming to the screen and she'll be explaining everyone that introducing Guruma and about today's topic as well. A little about Madhuji. She has been a profound teacher for about 20 years now, and she's working very close to Guruma for I think 17 years, and she maybe more. She has she's like a spiritual bhakt, you could say, with Guruma, and she's been learning for so long. So thank you, Madhuji, for coming here, and all over to you. थैंक यू सो मच याशिका. आप सबको बहुत बहुत प्यार भरा हरिओम हमारी तरफ से, यूथ एनलाइटनमेंट की तरफ से, और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे 75th इंडियन इंडिपेंडेंस डे की. आप सब जान गए होंगे इस बार सुबह से बहुत चर्चा चल रही है. इस साल हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है. बहुत अच्छी तरह से मैं इस बात को रिलेट कर पाई थी सुबह जब यूनिवर्सिटी में चर्चा चल रही थी आजादी का अमृत महोत्सव. सो यू नो, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय. पिछले 1.5 साल से जिस विश्व वाले भरे वातावरण से हम लोग गुजर रहे हैं, उसमें हम विश्व को त्याग के अमृत को ग्रहण करें, अज्ञान को त्याग के ज्ञान के प्रदेश में एंटर करें, असत को छोड़ के सत की राह पे चलना शुरू करें. ये हम सबकी प्रार्थना, पूरे देशवासियों की प्रार्थना है आज के दिन. और हम जो अपने गुरु भगवान के बच्चे हैं, हम सारे जो इस प्लेटफॉर्म पे हर सप्ताह मिलते हैं, लेन देन करते हैं, प्रश्न उत्तर करते हैं, गुरु माँ के सानिध्य में 1-1.5 घंटा रहने का इतना सुअवसर मिलता है, उनके मुख से बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलती हैं. तो आज के दिन से बहुत अच्छा रिलेट करा मैंने पर्सनली. सो आई थॉट जब आप लोगों से बात होगी तो जरूर इसकी चर्चा करेंगे. आज हम सब मिलके यही प्रार्थना करेंगे कि हमें हमारे गुरु ज्ञान से ज्ञान की तरफ आगे बढ़ाते जाएं. याशिका ने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन किया. हर बार की तरह इस रविवार को भी हम एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ आए हैं. ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं श्रावण महीने में भगवान शिव का ये पवित्र मास गिना जाता है, भगवान शिव की आराधना की जाती है. गुरु माँ हमेशा मुझसे कहते हैं कि मधु, भगवान शिव हमेशा गुरु को पकड़ाते हैं, यू नो, अपने बच्चों को गुरु को हैंड ओवर करते हैं, क्योंकि गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है. हम सब जानते हैं गुरु में सब कुछ समाया हुआ है. सो गुरु माँ का इंट्रोडक्शन करने में हर बार मैं आप लोगों से कहती हूँ बहुत कठिन काम है मगर बहुत इंटरेस्टिंग भी है. हर बार उनको इंट्रोड्यूस करते करते ही यू नो उन्हीं के अनुभूतियों का और ज्यादा एहसास होता है. हमारे परम पूजनीय आनंद मूर्ति गुरु माँ हमारे साथ हैं. इतने सालों से ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं. अपने सदगुरु दादा लक्ष्मी भगवान से उन्होंने जो भी सीखा समझा वो संसार को और देने का उनका निश्चय था पहले ही दिन से. भगवान जी कहते थे 4 को बना, तो हमारे गुरु माँ कहते थे मैं 4000 को बना के दिखाऊंगी. तो बहुत अच्छा लगता है उनका, उनसे मोटिवेशन मिलती है. गुरु माँ बहुत वर्षों से ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, कितने माध्यमों से सबको ज्ञान से यू नो उजागर कर रहे हैं. अब तो यूथ एनलाइटनमेंट चैनल पे और भी ज्यादा इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है जूम प्लेटफॉर्म के कारण. एक बहुत अच्छी बात आप लोगों से शेयर करूंगी. कल के दिन हम लोग यूथ एनलाइटनमेंट नाम का यूट्यूब चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं. अब तक सिर्फ हम जूम पे मिला करते थे, मगर कल याशिका जी और हम सब मिलके, मतलब एज अ टीम हम लोग नया चैनल लॉन्च करेंगे. आप लोगों को इस व्हाट्सएप ग्रुप पे इत्तला कर दी जाएगी. वी विल शेयर द link with you so that you can subscribe or like or you know follow us whenever you want to. देखें किस तरह से भगवान और ज्यादा ज्ञान की गंगा को और कैसे आगे बढ़ाना, भगवान की ही मर्जी होगी, जैसे भी होना होगा. तो गुरु माँ अगर आ चुके हैं हमारे साथ. याशिका, कैन यू टेल मी प्लीज? Hello to everybody.
Lot of blessings to all of you, and I hope you all are in good health. That is the most important. Current major, most important is your health. So for your good health, today we have brought the topic देवों के देव महादेव के व्यक्तित्व से हम कैसे सीखें कि हाउ ही स्ट्रेस फ्री ही रिमेन्स। आप लोगों ने कितनी बार लॉर्ड शिवा को पूरे का पूरा उनका व्यक्तित्व देखा होगा, लेकिन आज आपको शायद कुछ चीजें याद आ जाएंगी जो हम आपको हमारी जिंदगी में वो कितने काम की आ सकती हैं, उसके लिए ये आज आप लोगों के लिए रखा है, सो दैट वी कैन बी इन गुड हेल्थ एंड वी विल बी स्ट्रेस फ्री। सो शिव जी के व्यक्तित्व पे हम देखें तो क्या है, सबसे ऊपर जाएं आप, सबसे ऊपर क्या है, गंगा बह रही है। गंगा क्या है, पानी। नीचे आएंगे शिव जी के, उधर तो क्या है, तीसरा नेत्र, उधर क्या है, आग। सो पानी और आग साथ साथ चल रहे हैं, समझ रहे हैं आप सारे? पानी और आग साथ साथ चल रहे हैं। दूसरे देखिए, गंगा बह रही है, नीचे तीसरा नेत्र है। एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी? हाँ जी गुरु माँ। यस यस। देन साथ में क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा का क्या प्रतीक है, अमृत। नीचे जाएंगे तो क्या है, विष, जहर पिया था ना शिव जी ने। गंगा और पानी, आग और पानी साथ साथ में है, ऑपोजिट। फिर आ गया अमृत, चंद्रमा और जहर। अमृत और जहर दोनों साथ साथ में है। फिर नीचे आ जाए आप, वहां क्या है, इतना बड़ा स्नेक, सांप है। सांप के साथ आप देखेंगे उनका बेटा जो है लॉर्ड गणेशा, उनकी सवारी क्या है, चूहा। फिर अपोजिट, सांप और चूहे का कहीं मिलन नहीं है, दुश्मन है। पानी और आग अपोजिट साथ साथ में, अमृत और जहर अपोजिट साथ साथ में, सांप और चूहा साथ साथ में। बेटा उनका जो है कार्तिक, उसका सवारी क्या है, मयूर। वो भी अपोजिट ऑफ सांप और मयूर की भी दुश्मनी है, वो भी साथ साथ में। हर चीज अपोजिट है और वो साथ साथ में रह के भी शांत अवस्था में है। फिर उसके आगे आएंगे तो क्या है, उनकी सवारी क्या है, लॉर्ड शिवा की, नंदी। नंदी माना हिंदी में बोलते हैं बैल। और माँ भवानी की जो उनकी पत्नी है, माँ भवानी है, उनकी सवारी क्या है, शेर। का अपोजिट, कहीं भी मिलन नहीं है, बाप बेटे का नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, चंद्रमा जहर का नहीं है, पानी और आग का नहीं, सब अपोजिट साथ साथ में चल रहे हैं। उसके बावजूद भी वो शांत अवस्था में है। तो कैसे वो, अगर सबको साथ में लेके अपोजिट, सारे उनके अलग हैं, अपोजिट हैं, उनको लेके चल रहे हैं। और हमारी जिंदगी में तो इतने काटने वाला कोई नहीं होगा जो शिव जी की जिंदगी में है, महादेव की जिंदगी में। तो हम सबको साथ में लेके नहीं चल सकते? यस जी गुरु माँ। समझ रहे हैं सारे? जी। तो कहाँ हमारी गलती होती है? ये सारे सिंबल जो है हमारे लिए बनाए गए हैं, रामायण हमारे लिए, महाभारत हमारे लिए, ये सारे देवों के जो सिंबल्स हैं वो हमारे लिए, सो दैट हमारे पास आंख हो देखने की। हम देखते हैं, मंदिर भी जाएंगे, जल भी चढ़ा देंगे, लेकिन हमने कभी देखा नहीं है ध्यान से। तो इन चीजों का आज हमने आपके लिए रखा कि इतने काटने वाले लोग अपोजिट हैं,
फिर भी शांत अवस्था है, और वो क्या बताते हैं कि मैं एटलीस्ट दिन में 2 बार तो मैं हमें खूब सारा अपने में एकांत में ध्यान अवस्था में बैठना चाहिए जब इतनी ऑपोजिशन हो। जब आप बैठ भी नहीं सकते हैं तो भी क्या है, उसके बीच में आप खाली ये समझ लें कि मेरे सराउंडिंग में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे घर में इतना जबरदस्त अपोजिशन नहीं है जैसे महादेव की है। तो हमारे लिए जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, हमारी समझ में कितनी कमी है जो हम उसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आज भी आप जितने भी आए होंगे इधर चैनल पे, मुझे पता नहीं है, हम क्या करते हैं, सोच डाउट रखते हैं मन में। इसके ऊपर भी शिव जी के साथ ही कनेक्टेड स्टोरी है, मैं बताऊंगी। जाएंगे, चलो आज देख आते हैं यूथ एनलाइटनमेंट पर। हम जाते हैं, एक दिन देखते हैं, क्योंकि जुड़े नहीं होते, अभी आ गए, कई तो आने के बाद भी पूरी जिंदगी जैसे रिश्तेदार रहते हैं, लेकिन जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी डाउट रखते हैं। आप ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू पीपल। आई विल ब्रिंग अनदर वन related to Ram, related to Hanuman, so that you can more understand practically अपनी लाइफ में हम उतार सके। तो जब डाउट बीच में आ जाता है, शक शंका आ जाती है, तो प्रॉब्लम और आ जाती है। आप एक दिन सुन के चले जाओगे और उसके बाद सोचोगे चलो अपने किसी फ्रेंड को भी बताओ, वो भी मैं भी एक दिन दिखाता हूँ, उससे काम नहीं बनता है प्यारे बच्चों। इस डाउट के ऊपर रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड उनकी पार्वती पत्नी बाद में हुई, पहला जन्म जो था सती का, उसके कनेक्शन में है कि हमें डाउट से कितना नुकसान होता है। उन्होंने क्या करा, एक बार एक कुंभज ऋषि के पास वहां राम कथा चल रही थी, और लॉर्ड शिवा ने, कहाँ रहते हैं, ऊपर मानसरोवर में, और ये कुंभज ऋषि कहाँ है, साउथ में। और लॉर्ड शिवा हमें क्या दिखा रहे हैं, कुछ पाने के लिए हमको ऊपर से नीचे आना पड़ता है। सती भी आई है साथ में, वो भी आए हैं, और दोनों राम कथा में बैठे हैं। जब राम कथा सुन लिया तो फिर उनके राम और शिव जी का बहुत गठबंधन, गठजोड़ है। उनको पूछो, शिव जी को पूछो आपके पिता कौन है, वो बोलेंगे राम। राम को बोलोगे कि मेरे शिव हैं, इष्ट देव, वो दोनों अपने को आपस में मानते हैं। तो जब कथा सुन लिया तो लॉर्ड शिवा ने सोचा कि क्यों ना मुझे आज राम के दर्शन भी हो जाए। उन्होंने सोचा, और रास्ते में जब जा रहे थे तो लक्ष्मण और राम दिख गए। वो दूरी पर थे। शिव जी ने धरती पे प्रणाम किया, जो सती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ये तो कोई ऑर्डिनरी है, और मेरे पति तो इतने महान है, ये अपनी बीवी को ढूंढने जा रहा है जो आदमी, उसको प्रणाम क्यों कर रहे हैं। उसने, कुछ माया ने घेर लिया सती को, वो चली गई। कहानी शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी, मैं आपको डाउट के रिलेटेड बता रही हूँ। किसी भी कोई सेमिनार अटेंड करो, कोई क्लास अटेंड करो, कहीं भी आप हो, जहां डाउट आ जाता है वहां कभी सक्सेस नहीं मिलती है। तो लॉर्ड शिवा की पत्नी होकर भी उनकी मन बुद्धि माया ने इतना घेर लिया कि बोलती, मैं देखना चाहती हूँ वो कौन इतना महान परमात्मा है जो ऑर्डिनरी है, जिसको मेरे पति ने प्रणाम किया है। तो वो चली गई। शिव जी जान रहे थे सब कुछ। औरत को वैसे भी, औरतें ज्यादा ऐसी डाउटफुल होती हैं, और वो समझ गई औरत का स्वभाव कैसा है। आपके लिए है ये समझने के लिए, कहानियां तो बहुत है, दिस आई एम टेलिंग यू पीपल, कि लॉर्ड शिवा का जब हमने इतने सिंबल्स दिखाए हैं, उसके रिलेटेड मैं डाउट के ऊपर भी, जो मोस्टली आप कहीं भी जाओगे, कोई किसी भी जगह जाओगे आप, वहां पहली चीज हमारा डाउट आ जाता है। तो उसमें क्या हुआ, सती चली गई सीता का रूप धारण करके। वहां लक्ष्मण जी ने उनको देख लिया, वो भी तो खूब पहुंचे हुए थे लक्ष्मण जी। उन्होंने देखा, अरे ये तो सती है, ये माँ है, ये इधर क्या कर रही है, लेकिन वो चुप रहे कि देखो भैया राम जो है वो कैसे पहचानते हैं। जब वो भी गए तो राम ने बोला, माँ आप इधर क्या कर रहे हैं।
शंकर जी कहाँ हैं? आप मान सकते हो सती जी की क्या हालत हुई होगी जो डाउट कर रही थी भगवान के ऊपर। ऐसा जब हो गया, अभी सोचो, लॉर्ड शिवा ने अपने अंदर से सोच लिया कि अभी ये गृहस्थ में है, मेरी पत्नी है, इसने मेरे राम के इष्ट के ऊपर डाउट किया है, अभी मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूँ। तो खानदानी जो होते हैं वो डाइवोर्स तो नहीं करते हैं, रहते हैं, लेकिन अपने दिल से निकाल देते हैं। उन्होंने क्या करा, चले गए साथ में, जब चल रहे थे राम कथा सुन के। आप सुनना बड़े ध्यान से, अगर सुना भी है आप लोगों ने शायद रिपीट हो जाएगा, कई बार हम गर्दन हिला देते, यस आई नो। ऐसा क्या होता है, कोई नयों के लिए चीज चल रही होती है, शायद जिसको नहीं पता होगा उसको, आपको रिपीट हो जाएगा, उसके लिए नया होगा। तो फिर क्या हुआ, जब शिव जी चल रहे हैं साथ में मानसरोवर कैलाश की तरफ, पूछा सती को रास्ते में, आपको राम मिले हैं? आप गई थी? सोचा औरत है, झूठ भी बोल ही देगी, और आप मानोगे नहीं, सती ने झूठ बोल दिया था। बोली हाँ, बोली मैं नहीं गई थी, दूर से देख के आ गई, मैं नहीं गई थी। शिव जी समझ गए, डिसाइड कर लिया। डाउट के ऊपर बता रही हूँ, कहीं स्टोरी में मत खो जाना, हमको अपने लिए समझना है। इधर आप समझेंगे कि जैसे आप आज इधर यूथ एनलाइटनमेंट में आए हैं, अगर आपने ऐसे ही नजर दौड़ दी शिव जी के ऊपर, मैंने जो बोला कानों तक गया, अंदर सुना नहीं। बोलते हैं वो तुम बैठे हो इधर, लेकिन सुना नहीं। जिसने सुना होगा वो गलती नहीं करेगा। हुआ क्या, लॉर्ड शिवा ने अपना सारा अहंकार सब छोड़कर, कई बार हमें कहीं स्पिरिचुअल गैदरिंग में जाओ, मंदिर में जाओ, हम चप्पलें क्यों बाहर निकालते हैं? Remove your ego, possession, money, beauty, everything you leave like चप्पलें खोलते हो ना, ऐसे बाहर खोल के एक छोटा बच्चा पढ़ाई करने के लिए जैसे आता है, वैसा बैठे। ऐसे लॉर्ड शिवा ने करा था, उन्होंने कोई पोजेशन नहीं रखा था। सती दक्ष की बेटी थी, और दक्ष की बेटी होने का अहंकार भी था, शिव जी की पत्नी थी, अहंकार था, तो कथा उनके अंदर नहीं गई थी राम की। इस कारण से अगर उन्होंने सुना होता तो वो ये एक्शन नहीं करती। ऐसे आप लोग आज इधर आए हो, अगर आप समझोगे, सुनोगे कि अगर आज ये मिला है कल क्या मिलेगा, तो डाउट नहीं रखोगे, तो शायद आप में से कईयों का जीवन बन जाएगा। जो डाउट रखेगा, फिर क्या हुआ, शिव जी कैलाश तक गए, अंदर नहीं गए। शिव जी बाहर समाधि में चले गए, जरा ध्यान से सुनना। और समाधि कितनी लंबी, 87,000, 87,000 वर्ष तक शिव जी आंख बंद करके बैठे रहे। उधर सती 87,000 तक वेट करती रही। इतनी लंबी समाधि लगाई उन्होंने। हम लोग इतनी छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, जब इन सब देवताओं के बारे में सुनोगे ना, तो पता चलेगा आपको कि इन सब ने कैसे, कौन सी तपस्याएं करी हैं, कितने पुरुषार्थ करे हैं आगे बढ़ने के लिए। फिर क्या हुआ, सती जब शिव जी की आंख खुली 87,000 ईयर्स के बाद, पहला शब्द क्या निकला, राम। फिर जब राम की कथा सुना रहे हैं शिव जी अभी सती को, हजारों सालों के बाद, इतनी देर में, जैसे आप इधर बैठे आप इधर उधर देखते जाओगे, आप ध्यान से नहीं सुनोगे, तो सती ने क्या करा, ऊपर से एक विमान जा रहा था, जहाज, उन्होंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया, जबकि शिव जी कथा सुना रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको सुना रही हूँ। कहीं सुन रहे होंगे, कहीं, अगर वो मैं कहीं स्टेज पे होती तो मैं सबको देख लेती। क्यों बनाई जाती है बड़ी स्टेज, कोई छोटा बड़ा नहीं है इस दुनिया में, वो इसलिए होता है सो दैट कोई देख रहा है, सुन रहा है, कोई सो तो नहीं रहा है, इसलिए जो सुनाने वाले को थोड़ा ऊंची गद्दी पे रखा जाता है, अदरवाइज कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। फिर क्या हुआ, उन्होंने पूछा ये क्या है, शिव जी ने बोला कथा सुनिए। बोलती नहीं, मेरा मन चल रहा है। उधर देख रहे हैं कि देवता लोग, दक्ष जो सती के पिता ने यज्ञ करा था, वहां जा रहे हैं देवता लोग, और शिव जी को कोई आमंत्रण नहीं है, कोई इनविटेशन कार्ड नहीं आया है। इसमें भी समझिए, कई बार आपके रिश्तेदारों में कहीं शादी है, कुछ है,
आपको पता चल गया है उसको नहीं बुलाया गया है, आप क्या करोगे? पर्पसली उनके घर होते जाओगे, अरे चलो चलो जाना है, व्हेन यू न्यू कि उनको नहीं बुलाया गया है। हम लोग का नेचर होता है ऐसा, फिर वो बोलेगा, फिर पूछोगे क्यों, फिर वो कहानी जानना चाहोगे। ऐसे महादेव को नहीं बुलाया गया, लेकिन देखो कैसे देवता लोग हैं सारे, वो जा रहे हैं बिना महादेव के, जो भी महादेवों के देव हैं, उन्होंने परवाह नहीं करी है। अलग बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु भी नहीं थे शायद, लेकिन ये देवता लोग चले गए। आगे आपको पता ही होगा, फिर जब सती को पता चला था, फिर वो पूछे बिना गलती फिर कर गई। शिव जी ने मना भी करा, वो बिना पूछे अपने बाप के घर भी नहीं जाना चाहिए, तो पति का कहना फिर नहीं माना और फिर चली गई। और वहां उसने देखा मेरे पति को इनविटेशन नहीं आया है, फिर उसने पूछा आपको क्यों नहीं आया। कई बार हमारा क्या होता है, ध्यान से सुनिए, हम अहंकारी नहीं होते हैं, हमारे मन में कुछ होता नहीं है, दूसरा उसको बुरा मना लेता है। जब दक्ष आए थे, शिव जी जब गए थे बराती बन के, तो सभी लोग, शिव जी फिर समाधि में जा चुके थे, वो उनके जमाई थे, जमाई का फर्ज भी बनता है, क्योंकि दक्ष प्रजापति बहुत बड़े थे, तो वो ब्रह्मा के पुत्र आगे, उन्होंने नहीं उठे, और उन गलती से उनकी इतनी डीप समाधि थी और दक्ष ने बुरा मना लिया था, जिससे अपनी इंसल्ट फील हुई और उन्होंने उनको नहीं इनवाइट किया। फिर सती ने जब पता चला, और वो आगे आप सबको पता होगा कि 51 देवियां बनी थी, और उसने अपना शरीर जठर अग्नि में उसने दाह कर दिया था। तो अगेन क्या है कि एक डाउट होने से कितनी प्रॉब्लम्स आई, समझ रहे हैं? ये सती की कहानी है, पार्वती माता बाद में आई थी, नेक्स्ट बर्थ में, ये उनका पहले वाला बर्थ था। तो शिव जी के साथ कनेक्शन में जो आज आपको सुनाया गया है, इसके साथ में, सो दैट हम प्रैक्टिकली किसी आइडल को रख के उसके व्यक्तित्व के बारे में जान के हम ज्यादा क्लियर हो जाए कि जब इतने बड़े हमारे देश महादेव, सावन का महीना भी चल रहा है, देवों के देव महादेव के आइडल से हम ये सब सीखते हैं। उसके बीच में आपको मैंने शक शंका की स्टोरी सुना दी कि जो जिन्होंने नहीं सुना, सती ने नहीं सुना तो क्या हुआ, और शिव जी अपना इनकार निकाल के सुनने आए थे। अभी आप सारे बैठे हो इधर, कितने जने होंगे जो सिर्फ देखने आए हैं, जहाँ चलो आज हो आते हैं, किसी दोस्त ने बोला है, और जहाँ अभी सुना है। अगर है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, अपना फीलिंग्स बता सकते हो। दिस वाज टुडेज दिस थिंग, वी हैव टू बिकम स्ट्रेस फ्री। जब हमारे पास इतने दुश्मन नहीं है, हमारा मन सबसे बड़ा दुश्मन होता है, हमारे अंदर 5 डेकॉइट्स हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, फिर मन बुद्धि, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारे को किसी को प्यार नहीं करने देते हैं। तो ये आज का है, जिसमें आई होप यू पीपल अंडरस्टूड। अगर है तो आप बताइए, किसी को क्वेश्चन करना है तो। Guruma, I think Rahul ji has a question. हरिओम गुरुमा, हरिओम। मुझे ये पूछना था कि शिव जी से और उनके पूरी महिमा से, उनके पूरे डिस्क्रिप्शन से हम ये कैसे सीख सकते हैं कि हमने स्ट्रेस फ्री रहना है? मीन्स इतना बड़ा आपको कहानी सुनाई कि इतनी अपोजिट पर्सनैलिटी, आई नो यू आर मैरिड, आपके जो भी घर में होंगे, 1-2 जना होगा, आजकल तो सारे 1-1 2-2 जने होते हैं, तो आपको तो कोई अपोजिशन अगर हो भी तो 1-2 जना होगा। शिव जी के तो सारे ही अपोजिट है ना। तो दिस इज कनेक्टेड विद आवर लाइफ की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए हमें, हम इससे सीख के आज से ही हमारा जीवन बदल जाए। बच्चे तंग कर रहा है, जहाँ कोई फ्रेंड्स हैं, कोई भी है, रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी है, कहीं भी हैं, अगर हम थोड़ा हायर लेवल पे रहेंगे तो हम, वो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, हम उनकी तरह हम शांत रह सकते हैं। हमारे बड़े बड़े दुश्मन ने तो विष, आग और पानी, तो हम तो बड़े छोटे दुनिया में रह रहे हैं। इट्स वेरी इजी फॉर अस। Thank you, Guruma. Thank you, Rahul ji. I think Madhu ji, you have a question. Yes, Yashika. गुरुमा, ये मतलब जैसे अभी
कलयुग की जस्ट शुरुआत हुई और ऐसा एनवायरनमेंट लगता है ना। इट्स नॉट शुरुआत, इट्स गोइंग टू बी एंड। जो 4,35,000 ईयर जो बोल रहे थे, दैट इज कंप्लीटिंग फास्ट, वेरी फास्ट। बोल रहे इतना सब बढ़ जाएगा तो जल्दी जल्दी वो खत्म हो रहा है। इट्स नॉट शुरुआत। शुरुआत हुई थी, द्वारका डुबोई थी कृष्ण ने। अच्छा अच्छा अच्छा। द्वापर युग के बाद फिर शुरुआत हुई थी, जहाँ तो दुर्योधन जैसे और सामवती जो कृष्ण का बेटा था, साम, ऐसे ऐसे लोग, रावण थे, ऐसे लोग, तब से शुरू हो चुका था। हाँ अच्छा अच्छा। तो अभी जिस एरा में हम रह रहे हैं, जिस जमाने में, उसमें ये चारों तरफ नहीं 8 दिशाओं में नेगेटिविटी लगती है। वो तो फिर हम भगवान हो, आप हम सारे पॉजिटिव हो तो क्या थोड़ा थोड़ा करके सब जगह नहीं फैल सकती? कोरोना ने सबको करुणामय बनाया है, चैरिटेबल बनाया है। मैनी पीपल हैव चेंज्ड और सारे हेल्पफुल हो गए हैं। तो सोचो कितने जने सारी अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। ओके अच्छा। क्यों नहीं? टाइम लगता है, दानव ज्यादा स्ट्रांग होते हैं देवों के आगे, फिर भी हम करेंगे, कवर करेंगे, क्यों नहीं? हाँ ऐसा होता है, दानव ज्यादा स्ट्रांग, देव थोड़ा कम स्ट्रांग, शरीर की ज्यादा होती है, आत्मा थोड़ी कम पड़ जाती है, ऐसे। बट दे से ट्रुथ, सच आखिरकार साची होता है। सो ट्रुथ हाँ 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 सामने आ जाती है ना, कोई बात नहीं। जी। अभी आपने जो शिवा की ये लंबी वाली जो कहानी सुनाई, उसमें हमारे डे टू डे बातों में कितना ज्यादा ये छोटी छोटी बातें होती हैं। कोई गलत समझ जाता है, हम नहीं। I don't know how many are there. I can't see everybody, but आज भी आई होंगी। नेक्स्ट में सोचेंगे नहीं। फिर देखो, एक मजेदार बात मैं बताऊं, जो मैं अपने मास्टर के होके आई हूँ, मेरे गुरु थे, उधर से जो फीलिंग्स बनती है ना, तो कोई अगर बाद में सोचे कि ओ हो मैंने तो छोड़ दिया था यूथ एनलाइटनमेंट, चलो मैं आज फिर झिझक रहा होगा, हम उसको भी वेलकम करेंगे। दिस इज कॉल्ड अध्यात्म सोच। दूसरी जगह में क्या होता है, अरे पहले क्यों गया था, अभी इसको नहीं आने देना है। ऐसा नहीं करना चाहिए कहीं भी नहीं। भूला हुआ दोबारा, भटका हुआ बस सुबह का भूला वापिस आ जाए, उसको भूला नहीं कहते हैं। सो वी शुड बी लाइक दिस। सो एनीबॉडी गोज, एनीबॉडी वांट्स टू कम, दे आर मोस्ट वेलकम। सच अ नाइस जेस्चर, बहुत अच्छा, ग्रेट। Divine souls, we have to be divine. Thank you, Madhuji. Thank you for your question. Thank you, Guruma. We have Babita. She has a question. Hari Om, Guruma. Today, for the first time, I'm joining Youth Enlightenment. I came across Instagram on it. मेरा क्वेश्चन ये है गुरुमा कि यूजुअली हमारे माइंड और हार्ट हमेशा बैटल पर रहता है, एंड आई हैव फेल्ट फॉर बाय माई सेल्फ कि कहीं बार मैं जो दिल में सोचती हूँ, मेरा माइंड वो नहीं सोचता है, एंड माई माइंड एंड माई हार्ट इज ऑलवेज ऑन बैटल। तो दिल को पता है, लेकिन मधु जी ने बताया होगा, वी आर रनिंग 2 more channels, divine everyday enlightenment and divine enlightenment. There we are giving every day, day to days, giving how we have to live, how we have to control our mind. Every topic is there. Some 500, 600 topics must be there. I can give you today also answer, but you start listening that also, that will be every day your dose will be there. So you'll be able to apply on in your life. Okay, Guruma, thank you. Mind and body, this is how we, हम लोगों ने मटीरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा महत्ता दी है। पैसा कमा भी लोगे, फिर जब दुखी औरतें हो जाती हैं, आपके घर में ग्रैंड माँ होगी, माँ होगी, कब जाती है सत्संगों में भजन करने भगवान की? जब सब बेटा बहू ने छोड़ दिया, दुख आ गए, बीमारी आ गई, चलो अभी चलते हैं। एंड में जब सारे रास्ते बंद होते हैं तब जाते हैं। यू आर लकी एनफ। हम लोग यंग एज में अलॉन्ग विद हमको अपना पार्टनर कौन बनाना है? भगवान। क्यों बोलते हैं अपना 10वां हिस्सा भी तुम उसमें डालो, भगवान के लिए डालो, बोलते हैं ना, ये सुना होगा ना आप सबने। इतना कमाते हो, उसका 10वां हिस्सा भगवान के लिए डालो, बिकॉज ही इज आवर रियल पार्टनर। तो हमको ये बातों को पता नहीं था। और सत्संग, इन बुजुर्ग औरतों ने नाम दे दिया सत्संग। सत्संग माना, मैंने भी बहुत टाइम लगाया था। मैंने बोला लोग दुखी सुखी जाते होंगे, मैं क्यों जाऊं?
दिस इज ए वेरी लॉन्ग, वी शुड से दिस इज अ रियल गीता का ज्ञान, जिसमें हमें डे टू डे में लर्निंग होती है। अपने घर में ही जो लोग हैं पहले उनसे हमने कैसे निकलना है, कैसे चलना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव प्रायोरिटी टू स्पिरिचुअल along with होना ही चाहिए, इसके बिना आपका मतलब ही नहीं है, चलेगा ही नहीं। देन यू आर ए स्लेव ऑफ माइंड, ये तुम ये हो ही नहीं। जो रियल गीता का ज्ञान है, हे अर्जुन तुम ये नाम रूप तुम नहीं हो, तुम एक आज शक्ति हो। हम पावरफुल साउल हैं, लेकिन हमने अपनी शक्तियां रॉन्ग कंपनी में, संग नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो गवा डाली। सो वी बिकेम वीक। फिर अभी व्हाट्सएप ग्रुप इतने आगे, एक एक ने पता नहीं कितने रखे होंगे, सारा टाइम लगते लगते हम उस परमात्मा के साथ जो जुड़ना था उसको छोड़ दिया। इम्यूनिटी सिस्टम कम हो गया, कमजोर हो गया, निंदा चुगली बातें बातें कौन क्या करोगे, लोगों की बातें करोगे, उससे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया और कोरोना जी आ गए। सो आज फ्रॉम टुडे यू ऑल आर अ गुड साउल, डिवाइन साउल्स। आई विश विल आल्सो ब्लेस यू। या आप इस रास्ते पे भी चलो, 2% हमको ये भी देना है। Everything will be controlled, okay? Thank you, Guru Ma'am. Nishant, you have a question? Go ahead. Yes, नमस्ते गुरु माँ। Good, नमस्ते। Good. आपने बताया था कि अभी जो है कलयुग खत्म होने वाला है, और मैंने सुना है कि कलयुग में कल्कि जी अवतार लेंगे, तो वो ले चुके हैं या फिर लेंगे? कल के अवतार कोई अवतार घोड़े पे नहीं आएगा, जो हमें बताया गया था। कोरोना के रूप में आया है, बीमारियों के रूप में आ रहा है, हम सुधर नहीं रहे हैं। फिर ये वार का पॉपुलेशन ये तो होगी ना, कोरोना उसने क्या करना है। जब हम घर में ही हमारे इतना लड़ाई झगड़े हो तो दिल करता है भगवान खत्म हो जाए, ऐसे करते हैं ना हम भी दुखी होके। ऐसे भगवान जब दुखी हो जाते तो कई रूपों में भेज रहा है वो। तो हम आपको ये सोचना नहीं है, आपको अपने गोल पे रहना है। आपके लिए जरूरी नहीं है ये सब जानना। फिर आप अपना गोल को डालोगे कि अभी पता नहीं कल की आ जाएगा, हम मर जाएंगे। डोंट थिंक लाइक दिस। वी आर अ सतयुग खोल रहे हैं हम लोग, सतयुग कलयुग दोनों साथ साथ चलेंगे। तो यू ऑल आर सतयुग वाली आत्माएं हो आप सारी, तो यू डोंट हैव टू थिंक ऑल दिस। तो अभी कलयुग नहीं चल रहा? उसको आपको क्या करना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, आपको अपनी दिशा में रहना है। आपको क्या करना है, आए नहीं आए, जब तक दुनिया है हम भी बैठे हैं। ओके गुरु माँ। ऐसी बातों में मजा आता है ना गुरु माँ, जानने के लिए। अभी कलयुग आया नहीं, अभी सतयुग नहीं आया, अभी ये नहीं हुआ। हाँ, आधे तो ऐसे न्यूज से डर डर के लोग बैठ गए हैं। सारा टाइम न्यूज एंड पेपर जो सुनते हैं सुबह सुबह। नो बॉडी शुड लिसन द न्यूज, नो बॉडी शुड ओपन योर व्हाट्सएप, नो बॉडी शुड। पहले रन 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 इन द मॉर्निंग। आपको नेक्स्ट टॉपिक देंगे, हैबिट्स मेक्स योर फ्यूचर। और ये ऑलवेज थिंक, आज देने के बाद नेक्स्ट आपका संडे पहले ही मैंने सोच लिया होता है। गुड हैबिट्स विल मेक योर फ्यूचर। दैट next, habits are wrong. We are not serious about anything. अगर वो कलयुग में चला गया निशांत, हम सीरियस नहीं होते हैं। जो चीज कर रहे हो उसमें सीरियस हो जाए तो फिर देखो। कभी आपने देखा आईसीयू में जो होते हैं लोग, फिर उसके बाद वेंटिलेटर पे होते हैं, 8-10 डॉक्टर्स टीम होती है। दे आर ऑल ओवर, इतनी वो स्क्रीन एंड पाइप पे सारा टाइम उसको देख रहे हैं, अभी कहाँ हुआ, अभी क्या हुआ, अभी क्या। कितना सीरियस होते हैं, तभी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं या ऐसे ही कर देते हैं। हमारी सीरियसनेस किसी चीज में नहीं होती है। आज लर्निंग्स कितना सीरियस होना चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन होने चाहिए। That's right. This is very important. How serious I am. आप मूवीज देखते हो, अभी तो पद्मावती और ये सब होंगी। पहले जब मीडिया नहीं था, ये नौशाद और ये मुगले आजम और ये सारी जो मूवीज बनी थी, आई थिंक एक में तो गाना था, उसको 101 बारी नौशाद को करने के बाद फिर कहीं सिलेक्ट किया गया था। इतना टफ टाइम लोग लगाते, इतना सीरियस हो जाते हैं कुछ करने के लिए। हमारी प्रॉब्लम है कि वी आर नॉट सीरियस। थोड़ा 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 करके लेजीनेस आ जाती है। उसमें जो वैजंती माला थी, कौन थी मेरे ख्याल से, उसके जो लोहे की बेड़ियां भी थी ना मुगले आजम में, हाँ शायद, जहाँ प्यार किया क्या डरना क्या, आई डोंट नो, मैंने तब सुना होगा।
उसकी वो लोहे की बेड़ियां भी रियल थी, सो दैट इट पेन्स हर एंड वो आंसू रियल लगे। क्या क्या करना पड़ता है लोगों को प्रोफेशन में। वी आर नो वेयर सीरियस अबाउट एनीवेयर। हाँ जी गुरु माँ, बिल्कुल आपने सही बोला। हम लोग सीरियस नहीं है ना काम में ना कहीं पर। इसको कितने आते हैं, दीपिका पटोदकर को वो जो नेक गहने पहने थे उसको स्पॉन्डिलाइटिस हो गया था, और एक मूवी में एक हीरोइन को वेट पुट ऑन करना पड़ा था, कईयों को पतला करना पड़ता है। हाउ मच दे पुट एफर्ट्स टू गेट इनटू देयर प्रोफेशन। याशिका, नेक्स्ट क्वेश्चन। या जैस्मिन जी, आपका क्वेश्चन था। हरिओम गुरुमा। गुरुमा, अगर हम शिव जी की बात करें तो मतलब उनको एक विकराल रूप में भी देखा जाता है, एक महादेव मतलब भोलेनाथ मतलब एक भोले स्वरूप में भी देखा जाता है। देखा जाता है। आपके फादर आपको कब ज्यादा डांटेंगे, जहाँ सीरियस होंगे, जब आप बहुत ज्यादा बिगड़ गए होंगे तब करेंगे ना, पापा को पड़ेगी ना, बताइए। ठीक गुरुमा। अपने पापा का जो भी आपके होंगे विकराल रूप कब देखते हो, जब आप बिगड़ जाते हो, जब गलती करते हैं या जब कुछ गलती करते हैं। सहनशीलता रखते हैं, जब बहुत ज्यादा हो जाता है। जब सती ने अग्निदाह कर लिया था तब उन्होंने अपनी जटा निकाली थी, जटा खोल के उन्होंने उसमें से वीरभद्र निकला था। वीरभद्र को अनाउंस कर दिया था कि जा सबको मार डाल। कब खोला उन्होंने, जब अति कर देते हैं हम, और अदरवाइज ही इज नॉर्मल भोले भोले। तो हमें क्या करना होता है, हमें विकराल रूप नहीं करना होता है। दिस इज अनदर, आज आपको काफी कुछ मिल गया है। जब भी कुछ हो रहा हो घर में, आप क्या करो, थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए, सिर्फ ऐसे करना चाहिए, ऐसे जैसे डराते हैं। वी डोंट हैव टू डू दैट आल्सो। लिटिल करो कि कोई दूसरे को थोड़ा डर जाए, बस। ठीक तो समझते हैं, ये स्टोरी है छोटी सी। एक बार एक सांप, बाहर नारद जी जा रहे थे विष्णु के पास, तो सांप था एक, उसने विष्णु ने उसको, सांप ने अपना रूप धारण करा, दूसरे अपने असली रूप में आए नारद के सामने, बोला बताओ मैं अपने कर्म कैसे काटूं। बोलते अच्छा मैं विष्णु के पास जा रहा हूँ, तू क्या कर, तू काटना नहीं, फुंकारना लेकिन काटना नहीं। तो सांप ने क्या करा, जब भी बिल से निकलता था तो बच्चे सारे पत्थर मारते थे उसको, और वो लहू लुहान करके उसमें चला जाता था बिल में, क्योंकि बोला था कि काटना नहीं। फिर जब नारद सब वापस आए तो देखा इसकी तो बुरी हालत हो गई है। तो उसने बोला आप ही ने तो बोला था। बोलता बेवकूफ, काटो नहीं लेकिन फुंकार तो करता, लोग डर जाते। ऐसे हमारे माँ बाप को भी ज्ञान नहीं पता है, सीधे ऐसे कर देंगे, मार देंगे, सजा देंगे। हमको थोड़ा सा गुस्सा सा करना है, सो दैट दूसरा बुरा भी नहीं हो जाए, और लिटिल बिट फुंकार करनी है। हमें किसी चीज का पता ही नहीं, ना इधर भी अटेंड था, कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं ना जाते हैं, पता कैसे चलेगा घर बैठ के। हरिओम गुरु माँ, मेरा क्वेश्चन है, इज इट इम्पोर्टेंट टू मेडिटेट? डू ऑल द पीपल हु मेडिटेट बिकम सक्सेसफुल? नो, नॉट एट ऑल। मेडिटेट के लिए आपको बहुत ज्यादा शुरू क्या होता है, हम कई लोग सो जाते हैं, इसके लिए आपको खाना बहुत लाइट खाना होता है। मोस्टली पीपल आर, स्पेशली ओल्ड एज पीपल, गो फॉर मेडिटेशन, दे स्लीप, क्योंकि खाने का पता नहीं है, हैवी फूड होता है, बॉडी हैवी होती है, एंड दे थिंक वी आर मेडिटेटिंग। So first of all, we should know. That's why I made your topic habits change. Habits are our future. हमारा पूरा उसमें आ जाएगा कि हमें अपनी बॉडी, जो इतना कीमती शरीर है, उसको कैसे रखना है। तो मेडिटेशन तब होगा जब आपकी समस्या का समाधान, समाधि का मतलब समस्या का समाधान, अंदर समस्या पड़ी है, हल प्रॉब्लम नहीं हुआ है, डॉक्टर के पास नहीं गए हो, और तुम आंखें बंद करोगे तो आपको फल नहीं मिलना है। सो आपको प्लेटफॉर्म मिला है वेयर यू कैन बी एम्प्टी आउट योरसेल्फ विद द प्रॉब्लम्स, शेयर आउट योर प्रॉब्लम्स, एंड देन लगाओ समाधि। वो खुलेगी ही नहीं, शिवजी वाली समाधि लग जाएगी। We have a question from Divya. हरिओम संत,
सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि हमको 100% देना है जैसे इनटू प्रोफेशन, तो बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई ट्राई टू गिव माय 100% एंड इनफैक्ट 200% का हम लोग गोल लेके चलते हैं तब जाके 100% दे सकते हैं। बट क्वेश्चन ऐसा है सर, आइदर आप इसे क्वेश्चन कहिए या आई वांट टू नो कि वेदर आई एम ऑन राइट ट्रैक और नॉट, क्या मेरा जो सोच है जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं, या ये प्लीज मुझे गाइड कीजिए। वो ये है कि जैसे आई फील कि जैसे प्रोफेशन या जॉब में मैं 100% देने का ट्राई करता हूँ बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और मुझे लगता है कि नहीं ये 100% नहीं हो पा रहा है, मतलब। और जैसे बिकॉज देर आर सर्टन थिंग जैसे पर्सनल लाइफ है या अपना सोशल लाइफ कहिए, तो सब में थोड़ा 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 हमको उसमें आइदर इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो एट अ टाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट कि मैं किसी एक ही चीज को 100% दे पाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट ए सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटीज जो होते हैं दे आर वर्किंग 24 आवर्स। कई इंटरनेशनल कंपनीज हैं, they are working 22 hours, more than that also. There are no holidays for them. So your job is 9 to 5, 9 to 6, whatsoever is there. That I had made a topic 8 plus 8 plus 8. अगर आप पैसा भी कमा रहे हो, आपको फ्रेंड्स भी चाहिए, समाज भी चाहिए, घर में शांति भी चाहिए, सो यू हैव टू मैनेज योर ऑल दिस थिंग्स। इसलिए तो ये बनाई गई है स्पिरिचुअल गैदरिंग, स्पिरिचुअल क्लासेस। योर टाइमिंग्स आर सो लेस। थिंक अगर आपको और आगे बढ़ना है, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हाउ दे डू, आप उनका पढ़ो जरा, जिन्होंने बड़े बड़े सक्सेसफुल हुए हैं उनके बारे में पढ़ के फिर क्वेश्चन करो, आपको पता चलेगा। मैंने सचिन का भी बताया था, सचिन तेंदुलकर को 20 साल के बाद इंटरव्यू लिया गया। व्हाट ही सेड, आई वॉक क्रिकेट, आई टॉक क्रिकेट, आई ड्रिंक क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, आई स्लीप क्रिकेट। पूरा डालना पड़ता है अपने आप को। वी आर नॉट सीरियस अबाउट एनीथिंग। हमें 24 आवर्स सूरज के पास है, हमारे पास है, टाटा बिरला के पास है, मोदी जी के पास है, जितने भी लोग हैं सबके पास 24 ही घंटे हैं। हाउ डू दे डू? ठीक है, उनके पास मैन पावर ज्यादा होगी, आपको जैसा जगह है उसमें से जागना है ना, वैसा मैनेज करना है हमको। पर इट बिकम्स डिफिकल्ट कि मतलब तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है। तो प्रॉपर विटामिन्स एंड ऑल, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी फर्स्ट। Machine is fit, then you cannot say like this. You should know about what diet you, मधु को पता है। नहीं, दिव्य को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। दिव्य क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली बीच में कुछ साउंड आ गया था तो सुना ही नहीं दिया। ओके, गुरुमा कह रहे थे कि न्यूट्रिशियस डाइट से बहुत फर्क पड़ेगा। यस, पर अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट लेते हो और कुछ और रीजन है तो मुझे नहीं पता, आप पूछ सकते हो। कर लेंगे, ठीक है, बाद में बात कर लेना, मधु से कर लेना, मेरे से, ठीक है। अच्छा, अच्छा, टाइम कम होता है ना। हाँ जी, अविनाश जी आपका क्वेश्चन था। हरिओम गुरुमा। गुरुमा, कभी कोई हमारे से उल्टा चलता है, मतलब गलत करता है, और अभी हालांकि उसने माफी भी मांग ली है और बोलता है कि वापस नहीं करूंगा, पर फिर भी ऐसी थोड़ी शंका आ रही है कि वो वापस शायद करेगा, तो डर है थोड़ा मन में कि वो वापस अगर वही गलती वापस करे सामने वाला, तो कैसे जाए, मतलब उसमें भी भगवान ही देखे कि सोचो ही नहीं कि वो करेगा। आपको अपनी सोच बदलनी है। 100% नहीं होगा। मेक उस इंसान को भी, हमारी वाइब्रेशन से दूसरा ठीक हो जाता है। हमारी अंदर से नियत क्या है, बोलते हैं ना, हमारी नियत पूरी दुनिया, कोरोना के बाद तो पूरी दुनिया के लिए। मेरे पास जो है, आप लोग ही नहीं हो, पूरी दुनिया में जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, माई प्रेयर्स फॉर एवरीबॉडी। उनको कौन ब्लेस करेगा, उनको कौन ठीक करेगा? So you be strong, आपके अच्छी वाइब्रेशंस उधर हल हो जाएंगी, काम कर जाएंगे। ऐसे विकल्प नहीं आने दो कि होगा दोबारा करेगा, तो ऊपर से प्रकृति टाइम नहीं दे रही है। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी। ऐसा सोचो ही नहीं। थैंक यू। सोच बदल दो, सोच से बहुत फर्क पड़ेगा।
Ria, do you have a question? हरिओम सन। सन, जैसे आप बोलते हो कि वो शिव जी कभी ऐसे बोलते हैं ना, नेगेटिव नहीं आता, जैसे हमारे अंदर बहुत बार नेगेटिव फीलिंग आ जाती है इतना पॉजिटिव सोचने के बाद, उस टाइम पे क्या करना चाहिए? बिकॉज वर्किंग विथ हाउस, कभी उस टाइम पे First of all, Ria, you are very old in the satsang also. हमारे ज्ञान में है कर्म प्राणी, जो भी घर में है, whether colleagues are in office, there also where connection है हमारे previous, जहाँ हम neighbors होते हैं, घर में देवर देवरानी जेठानी भाई बंधु जितने भी हैं, and the colleagues wherever you are working, we all are connected. तो जहाँ भी कोई हमारे से देखो मिलते साथ अच्छा लगेगा और किसी को मिलते साथ अच्छा नहीं लगेगा. So ये चीजें हमको जिसके साथ अच्छा नहीं लग रहा होता है, put your good vibration for them, so that when you are clear, उधर से भी clear आ जाएगा सब कुछ. सन, बट ऐसा सोचते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए. एक बार से डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, इस दवाई को आपको खाना है, फिर दवाई चेंज करता है डॉक्टर, फिर उससे ऊपर की दवा फिर मेदांता हॉस्पिटल में भेज देता है, तो नहीं ठीक होता है तो चलो दूसरी जगह भेजो. आप लोगों के सहनशीलता नहीं है. कर्म गंदा हमारा इतना बड़ा है और हम अभी से अभी रिजल्ट चाहते हैं, ऐसे नहीं होता है. कहां से कहां ले गए शिव जी का बता के, आप लोगों की जिंदगी में इतना इतना है और आपने शिव जी का सुना ही नहीं. कितनी अपोजिशन है सारी. हमारे में सहनशीलता नहीं है. बॉडी टू लिसन, टू लव एवरीबॉडी. मैं तो अपने दुश्मन को बहुत प्यार करती हूँ, मेरे तो नहीं है, अगर कोई मुझे समझता है, आई लव देम. मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज फियर? डर क्या होता है? मतलब डर सब हमने क्रिएट करा हुआ है, कोई डर नहीं है. अभी भी आपको पता क्या क्या सृष्टि में हो रहा है. कितने आपने लोगों के कमेंट्स भी सुने होंगे. सम डॉक्टर्स आर सेइंग ये सब फैलाया गया है, कोरोना डेंगू, ये दवाइयां बनाने के लिए, डायबिटीज का तो बोलते, इतना ज्यादा डर डाला हुआ है कि इतना हो गया तो इंसुलिन लगाओ, किसी ने इंसुलिन बेचनी है, किसने क्या करना है. ये सारे फियर, क्योंकि ऑनेस्टी नहीं रही है, इस कारण से ये सब हो रहा है. यू बी ए डिवाइन गुड साउल. पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ होता है. मैं अपनी बात बताऊं, मैं आप लोगों की तरह गई थी सुनने के लिए. आई वॉज 27 years old. मुझे नहीं पता था कि आज मैंने आपके लोगों के तक पहुंचना है. कैसे हुआ? पूरा ब्रह्मांड हमारे को हेल्प करता है, अगर हमारी नियत निष्कामी है, हेल्पफुल है, दूसरों के लिए प्यार है, पूरी सृष्टि के लिए. सो दे ऑल आर, दे ब्लेस अस. इसी तरह आपके ऊपर भी ब्लेसिंग बरसेंगी. कैसे रहा है और आगे आगे पता नहीं ये लोग क्या करेगा. पूरी शक्तियां हमारे अंदर है. हम डाली है जो समझना शुरू कर देता है. एक शेरे में 15 रखा गया, जब वो बाहर निकला 15 डॉग्स ने उसको काट डाला. कभी सोचा है कि डॉग्स शेर को खा जाए? क्योंकि शेर कमजोर बन गया, ऐसे लोग बन जाते. नियत ठीक है. बड़े से बड़े क्या होगा, मर जाएंगे ना, मर तो रहे हैं, वैसे ही मर रहे हैं. इसका क्या फियर है बताइए. गुरुमा, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही थी, शायद कनेक्टिविटी इंटरनेट की. गुरुमा, आप थोड़ा मूव कीजिए, आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ा लो है, तो सारी आवाज कट गई, आंसर सुनाई नहीं दिया. जी जी, ओके, दिस इज बेटर नाउ. Yeah. Okay. All right. This is better. Yashika, can we take up the next question? Yes, Mansi, you have a question? जी, हरिओम गुरुमा. My question is related to today's theme कि सृष्टि की संरचना कौन से भगवान ने की है, जिन्हें हम परब्रह्म कहते हैं, उनका क्या स्वरूप है? को बताया है. गॉड का मीनिंग आपको पता है? GOD, गॉड. जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर, डी माना डिस्ट्रॉयर. तो जनरेटिंग इज ब्रह्मा
and operating is Vishnu and destroy is Lord Shiva. So तीनों को मिला के Lord Shiva बने हुए हैं. जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों जने हैं. उसको कनेक्ट किया गया है लेडी के ऊपर. लेडी ऑफ द हाउस इज द ऑपरेटर. उसको लक्ष्मी माना गया है. अभी तो पता नहीं कैसा सिस्टम है. पहले वो रात को लेडी क्या करती थी, सारे कर्टन वर्टन डिस्ट्रॉय, वो सुबह वो उठती थी सबसे पहले घरों में और सारे कर्टन वर्टन पीछे करके खोलती थी घर को, और फिर दोपहर को पूरा ठीक करती थी, खाना वाना बनाती थी. रात को जब सब सो जाते वो सब बंद करती थी. तो लेडी ऑफ द हाउस कंसिडर्ड टू बी लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ द हाउस. उसके साथ कनेक्ट किया गया है. गुरु, हमारे सारे भाई जो बैठे हैं, दिव्य है, अविनाश भाई, वो तो बोलेंगे हाँ डिस्ट्रॉयर तो है ही लेडी घर की. ऐसे ऐसे अनुभव है ना इन लोगों को. तो फन लेते हैं तो मजा ही क्या है ना. सारा टाइम प्यार प्यार में भी मजा नहीं आता है. थोड़ा मीठा थोड़ा खट्टा दोनों चाहिए. हाँ, डिस्ट्रॉयर तो होती है लेडी. हाँ. Dakshpreet, you have a question? Do you have any question? No, I'm Okay. just listening to the others. Okay, thank you. Do we have any more questions? Sorry to interrupt, but not a question, but one commitment I want to give. जैसे क्यों मतलब जैसे आपने कहा कि मुझे इम्पोर्टेंट की न्यूट्रिशियस डाइट तो एवरी एस्पेक्ट जो जिसमें बता रहा. दिव्या, आपकी आवाज नहीं आ रही. Sorry. अब आ रही है जैसे. Better. Yes. हाँ या सो मैं जस्ट कहना चाहता था, जैसे मधु जी ने कहा कि इफ आई गॉट द आंसर, सो या आई डेफिनेटली गॉट द आंसर. जैसे संत ने कहा कि न्यूट्रिशियस फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई ऑन टू दैट. एंड इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि हर एक एस्पेक्ट में वी हैव टू बी गिविंग फुल अपना 100% इनटू दैट. सो डेफिनेटली मैं वो ट्राई करूंगा. आई विल चेंज माय डाइट काफी, एंड न्यूट्रिशियस डाइट आई विल इन्वॉल्व जो भी एलिमेंट्स या कुछ खाना है अंदर इन्वॉल्व है तो. एंड डेफिनेटली आई विल अपडेट ऑन नेक्स्ट वीकेंड कि मुझे क्या इफेक्ट हुआ या क्या चेंज आया. सो थैंक यू सन इसके लिए. गुड, दिस इज अ वेरी गुड थिंग. गुरुमा, हम भी बोल रहे थे ना दैट इफ अ वीकली अपडेट भी बहुत अच्छी बात है अगर हम लोग यहाँ पे कर सकें तो संडे के दिन. Yes. जैसे हाँ, पिछले संडे के सेशन से हमें किस तरीके से हमने क्या अप्लाई करा या क्या फायदा हुआ, अगर हो सके तो हम शेयर करें वो भी. Okay. There's a question in the chat कि प्राची जी का है, वो पूछ रहे हैं, not प्राची संत, I think it's a different प्राची. Yeah. She's asking if we are giving 100% in our relationship, even then we are getting cheated and they don't accept us instead of anything or everything we do. What can we do in this? लॉ ऑफ कर्मा, इसके ऊपर भी टॉपिक बनाया है. लॉ ऑफ कर्मा है. अगर आपने कभी किसी को ठगा होगा, चीट करा होगा, आपको भी कोई करेगा. दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा. सो जिसने आपने प्रीवियस करा था, अभी आप अच्छा करना शुरू कर दो, वो पर्सन आपके साथ अच्छा करना शुरू कर देगा. एज यू सो यू गरीब. वो है ना बना, जो बोओगे वही निकलेगा. तो हमारा ही किया होता है, वो आ जाएगा, ठीक हो जाएगा. हैव द ब्लेसिंग ऑफ एवरीबॉडी. जहाँ पे बहुत टफ लग रहा है उसमें ज्यादा टाइम लगता है. आप देखो, कभी गंदा कटोरा आप उसमें रखो, सम बाउल इन द सिंक में, और नल रख दो नीचे ऊपर, उसमें क्या है, बिना मांजे उसको वो साफ हो जाएगा. अगर वो थोड़ा चिपका हुआ है, चाय वाला बर्तन कुछ कई बार होता है ना, उसको लोहे वाले से करना पड़ता है ना. तो जो थोड़ा टफ हमारा रिलेशन होगा वहां टाइम ज्यादा लगेगा. आप प्यार डालना तो शुरू करो. हमारे में कमियां हैं. लुक इनटू 3 fingers. डोंट पॉइंट आउट लाइक दिस. लुक एट 3 fingers. ऑल ओवर आई एम रॉन्ग. आई डू माई सेल्फ लाइक दिस. और मुझे अपनी खुशी कहीं नहीं चाहिए. मैं दूसरों की खुशी कैसे देखूं, को दूसरों को खुशी कैसे दूं, ये असूल बना लो. कोरोना के बाद अपना बहुत कर लिया. स्टार्ट गिविंग. हाँ जी, थैंक यू. सॉरी, अरुण जी का क्वेश्चन था. हरिओम गुरुमा. तीसरी बार आपका सत्संग अटेंड कर रहा हूँ. मेरा क्वेश्चन है कि कभी कुछ काम होता नहीं है हमारा, हम बहुत कोशिश करते हैं,
पूरी जान लगा देते हैं, पर अगर लिखा नहीं है, होता नहीं और इच्छा नहीं हो रही है पूरी, मतलब तो वो जो बेचैनी होती है, फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है, तो उससे बाहर कैसे निकले? मैंने बोला ना अभी, वेंटिलेटर पे डॉक्टर्स कितने लगे होते हैं, सीरियस होते हैं ना, तभी उसको पेशेंट को ठीक करते हैं। ऐसे ही जिसमें आप लग रहे हो, अगर कई बार क्या होता है, शायद भगवान ने उसमें ना करके कहीं दूसरी जगह आपके लिए बेटर रखा हो। अगर बहुत कोशिश कर दी, नहीं हो रहा है, देन लीव इट, कि भगवान तेरी मर्जी मानूंगा, दाई विल बी डन, जो तेरी रजा होनी चाहिए, मेरी नहीं। और इतना अंदर से प्रेयर करो, भगवान मेरे को रास्ता दिखाना और मेरी बुद्धि में डालना, देन लीव इट। पहले करो अपना चॉइस, क्यों नहीं करना चाहिए? सोचोगे तो बनोगे ना। BMW चाहिए आपको, ऑडी चाहिए, राउडी के कौन कौन सी कारें हैं, मुझे इतने नाम भी नहीं पता है, वो सब चाहिए तो करना पड़ेगा ना, कुछ ऐसे ही आ जाएंगी। हाँ, सही बात। तो सोच बनाओगे तो करोगे ना। हमारी सोच ही बड़ी नहीं होती है। मैं 50,000 में ही सेटिस्फाई हूँ, मैंने आगे सोच नहीं रही कि मेरा 2 लाख भी सैलरी हो सकता है, उसी में सेटिस्फाई हो गई। फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं जब अपने मास्टर के पास गई, सत्संग में गई, मेरे इतने क्वेश्चन थे, मैंने छोड़ा नहीं था किसी को भी। मैं किसी को गुरु नहीं मानती, औरत है कोई होगी, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ मैं कैसे मानूं। मैं तो दुर्गा माता रानी को मानने वाली हूँ। मेरा आंसर दिया गया था कि मूर्ति आंसर नहीं देती है, ये जिंदा मूर्ति तुम्हें गुरु के रूप में मिली है, मास्टर के रूप में, वो तुम्हारे क्वेश्चन आंसर क्लियर करेगी। देन आई कंसीडर हर एज ए माई मास्टर। हम तो ऐसे ही कर लेंगे, दूसरा पागल हो जाए। ये लाइनें पहले से बनी है हाथों में, देखो सब बन के आई है। ये जब बच्चा पैदा होता है, हमने माँ ने बनाई है, ये बनी हुई है, पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। डेस्टिनी पहले हम जो करते हैं, अभी उसको आगे बढ़ाना है। डेस्टिनी को हमने दाल रोटी के लिए आपने बनाया है, आगे मुझे कोरमा खाना है, पनीर खाना है, ये करना है, उसके लिए मुझे और ज्यादा पुरुषार्थ डालना है। दैट्स ऑल। इतना भारी बना देते हो, इतना ज्यादा। सही बात है। थैंक यू गुरु। God bless. थैंक यू। I think we don't have any more. Oh, we have. खूब सारे आशीर्वाद to all of you. One more question. Sorry. Vishwajita. Hariom Guruma. I have no question, but I think जब आपने उस लॉर्ड शिवा की स्टोरी बताई, तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से मैं समझ नहीं पाई कि जैसे उनकी लाइफ में अपोजिशंस होती थी, जैसे आग और पानी, विष और अमृत। तो उनका तो फिर उनके लाइफ में भी स्ट्रेस था, लेकिन उनका तो स्ट्रेस वो मैनेज कर लेते थे। लेकिन हमारा सेशन तो ऐसा था ना कि स्ट्रेस फ्री लाइफ। वेरी गुड क्वेश्चन, कि हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं हैं जैसे देवता लोग हैं, तो हम ह्यूमन बर्थ में आए हैं प्यारे बच्चे, इसमें हमारे पास भी वही ताकत है। हम अपना जीवन अपना बनाओ, सुबह से लेके रात तक। आप देखना नेक्स्ट संडे आप बोलोगे यस आई एम नाउ बेटर पर्सन। नेक्स्ट संडे तक आप लोग बेटर होने चाहिए। अपना योगा करो, अपने टाइमिंग्स बनाओ, कैलेंडर बनाओ, प्रायोरिटी बनाओ, कौन सा जरूरी काम है जो करना है आपने, उसके मुताबिक चलो। देन प्रेयर्स आल्सो देयर, सोते समय प्रेयर करो, जो चीज आपको करनी है वो, फिर सुबह में फिर उस एफर्मेशन को रिपीट करो, देखो वो काम होते जाएंगे आपके पास पावर आ जाएगी। करो वी कैन डू। ओके, वेरी नाइस। Okay, that's all. Madhu, do you want to end? No more questions, Yashika? सबने पूछ लिया। हाँ जी। सबके बिहाफ पे मैं गुरु माँ का बहुत बहुत आभार मानूंगी। थैंक यू सो मच गुरु माँ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज डिस्कशन हुआ। इतने सदियों पुराने भगवान की सदियों पुरानी कहानी और उनके स्वरूप को डिस्क्राइब करके आपने कितना रेलेवेंट बनाया। और क्योंकि सबके इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे, इसीलिए लगा कि ये कोई सदियों पुरानी बात नहीं थी, ये हमारे में इनग्रेन्ड है, हमें जरूरत थी। और क्योंकि हमें देवी देवताओं के आदर्श से, अपने गुरु के आदर्श से ही ज्यादा से ज्यादा सीख मिलती है, ये प्रूफ है कि हमने भगवान शिव को उनका आइडल चुन के, उनकी पर्सनालिटी को देख के
हम कितना अपने माइंड्स को रोल कर पाए, कितने हम प्रश्न पूछ पाए. Thank you so much, Guruma. Next week we are looking forward for another more interesting session on such interesting themes. Yes. Thank you so much. Thank you everybody for sparing such precious time of yours on a Sunday. Thank you. Hari Om.